I hope I am properly audible and screen is visible to you. Okay, what we have seen in the last lecture, constructor, no? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. Yes, ma'am. Yeah. So today we are going to start with a new concept in object-oriented programming, that is method overloading. So in C++ also you have seen method overloading. Okay. So what do you mean by method overloading? Can anyone tell me? Same name method with different parameters. Yes, yes. So see, what is the basic concept behind it? So you might have, suppose there is a function of addition, right? And you want to add two numbers, integer numbers. So you are going to write down one function which will add two integers. Then after some time you think that no, I want to add two doubles also. So in that integer addition wala function, it is not possible to add two doubles, right? So you have to write down one more function which add two double. So पहले आपने क्या लिखा कि int addition का function लिखा where you are accepting two integer parameter. बाद में आपने लिखा डबल ऐड का फंक्शन, वहां पे आपने दो डबल पैरामीटर पास किए. Then after some time you think that no, I want to add three integer. So that three integer addition is not possible with two integer addition function. So what you are doing, you have written one new function, three int addition, and उसमें आपने three parameter पास किए. So see, every time you are writing a new function, depending upon the input, it's not a good practice. In this way, your program is not going to be readable. Okay, integer addition का एक function, integer 3 parameter addition का दूसरा function, integer 4 parameter addition का और एक function. And likewise, you are going to have many functions, no? So, and that too with the different names. So every time the user has to think, okay, which version I should call, किस function में 3 parameter है, किस में 4 parameter है, and likewise, right? So that becomes certain difficult. The program becomes cluttery. It is not readable, and that is why there is a concept called as method overloading in case of object-oriented programming. Okay, so let us discuss what is method overloading. So if a class has multiple methods having same name but different in parameters, it is known as method overloading. So what we can do in a single class, instead of writing down 4 or 5 methods with different names and different parameters, we will do one thing. We will have same name. चलो user का confusion थोड़ा कम करते हैं. Wait a minute, I will close the door. There is a noise from outside. Okay, so in a single class, instead of having multiple methods with different names and different parameters, जिनका सबका main motive एक ही है, addition ही है, right? So we will write down addition as a function name and we will pass different parameters. So your program will become readable, understandable, right? So if we have to perform only one operation, if our intention is only one, okay, so we will keep the same name of the methods. It is going to increase the readability of your program, right? So suppose you have to perform addition of given numbers, but there can be any number of arguments. So if you write the method such as a with 2 parameter of integer, then b with 3 parameters of integer, so it may be difficult for you as a developer as well as for other programmers to understand the behavior of this particular method because it has a different name. So see, when you can do the method overloading, you have one function, आपको इंटेंशन सेम है, राइट? एडिशन ही करना है आपको, बस पैरामीटर चेंज होने वाले हैं. देन यू गिव द यूनिक नेम टू दैट मेथड, ओके, एंड देन यू कैन टाइम पास पैरामीटर्स, राइट? सो अच्छा वो मस्त नहीं करना, मतलब पहले बोलूं. See, nobody will unmute them unless and until I ask you. So why do we do method overloading? To increase the readability of your program, right? Now there are different ways to overload the method. So first is by changing the number of arguments, and second is by changing the data type.
There are these two ways by which the methods in Java can be overloaded. First, you can change the number of arguments. तो पहले मेथड में 2 आर्गुमेंट थे, दूसरी में 3 है, चौथी में 4 है, and likewise. And you can change the data type if number of arguments are same. If I have a method add and there are two arguments, then what you can do, number of arguments are same, then you can change the data type. पहले 2 आर्गुमेंट इंटीजर थे, अभी के 2 आर्गुमेंट डबल है, then also the method can be overloaded. Now see, in Java, method overloading is not possible by changing the return type of the method only. Means आपका पूरा मेथड का नाम सेम है, नंबर ऑफ पैरामीटर सेम है, डेटा टाइप भी सेम है उनका, एंड यू आर चेंजिंग द रिटर्न टाइप. मेथड ओवरलोडिंग नहीं होता है. ओके, मेथड ओवरलोडिंग इज नॉट वर्किंग ओवर देयर. ओके, so the next is, we will see one by one now. Okay, so let us see the example by the first method, by the first way of method overloading. The first way is just changing the number of arguments. So see, I have a class adder, right? I have written a class adder. Inside adder, I have a method add. So it accepts 2 integer parameters, integer a, integer b, and it will return the a plus b. So a plus b is going to be integer, so my return type is int. Okay, I have one more addition. I have to do one more addition. तो मुझे 3 पैरामीटर चाहिए. So what I will do, method name I will keep same. Add था add. Case sensitive है Java, तो आपका capital small you have to be same. You have to keep as it is. Okay, so there was a add method. I will write down one more add method. I will keep name same. यहाँ पे 2 पैरामीटर थे. I will take more number of parameter. I will keep 1 parameter. I can keep 3 parameters or more than that. Okay, so I will take here 3 parameters a, b, c. It will add 3 integers and return the result. Obviously the result will be integer, so return type is integer. Okay, so now I have 2 versions of add method. First version accepts 2 integers, return integer addition. Second version accepts 3 integers and returns integer addition. Right, now check it out, what will happen, how you are going to call these methods. So I have my class test overloading. I have the main function inside it. I will create the object adder of obj1 is equal to new adder. यहाँ पे चाहिए, new वाला चाहिए यहाँ पे. Adder obj1 is equal to new adder. And then what I will do, I will call obj1 dot add. I will pass 2 parameter 11, 12. And I will have one more call obj1 dot add 11, 12, 13. Now please listen to me carefully how compiler resolves this. Okay, so see, whenever you call obj1 dot add, तो कंपाइलर क्या देखेगा, कंपाइलर विल गो टू द मेन, कंपाइलर गो टू द क्लास, कंपाइलर चेक करेगा ऐड को कॉल करना है तो कंपाइलर यहाँ पे आएगा, अरे यहाँ पे तो 2 ऐड फंक्शन है, किसको कॉल करूं, तो कंपाइलर विल चेक इनसाइड द ऐड फंक्शन कितने पैरामीटर है, सो यहाँ पे 2 पैरामीटर है 11 एंड 12. सो कंपाइलर विल चेक अगेन 2 पैरामीटर वाला ऐड फंक्शन है क्या, यस 2 पैरामीटर वाला ऐड फंक्शन है, दोनों पैरामीटर इंटीजर है क्या, यस दोनों पैरामीटर इंटीजर है. तो to this first call there is a perfect match. ये पहला वाला फंक्शन 100% मैच है, 2 पैरामीटर भी है, दोनों इंटीजर भी है, तो कंपाइलर विल कॉल दिस फंक्शन विदाउट एनी हेजिटेशन. ओके, कंपाइलर को क्या चाहिए था, एक तो नंबर ऑफ पैरामीटर कितने हैं 2, तो 2 मिल गए, एंड दोनों का डेटा टाइप कंपाइलर को इंटीजर चाहिए था, 11 इज इंटीजर 12 इज इंटीजर, तो दोनों का डेटा टाइप इंटीजर मिल गया, तो 100% मैच कंपाइलर को मिला है, एंड कंपाइलर इज गोइंग टू कॉल दिस ऐड फंक्शन, एंड कंपाइलर फिर कॉल करेगा 11 plus 12 ऐड करेगा, रिटर्न कर देगा एंड प्रिंट कर देगा. राइट, देन नेक्स्ट टाइम obj1 डॉट ऐड, फिर से ऐड को कॉल आया, कंपाइलर देखेगा अरे फिर से ऐड को कॉल है, तो क्या करूं, फिर से देखेगा कि 2 ऐड फंक्शन है, किसको कॉल करूं, तो क्या देखेगा कि अंदर देखेगा कि कितने पैरामीटर है, 3 पैरामीटर है, तो कंपाइलर देखेगा 3 पैरामीटर वाला ऐड फंक्शन है क्या, तो एडर के पास 3 पैरामीटर वाला फंक्शन है, तो कंपाइलर पूछेगा कि तीनों के तीनों इंटीजर है क्या, तो एडर में देखेगा तो बोलेगा यस देयर आर ऑल 3 इंटीजर पैरामीटर्स. सो कंपाइलर को फिर से 100% मैच मिल गया, तो कंपाइलर विल कॉल इन दिस केस the next version of add function with 3 integer parameters. It will calculate the integer ka addition and return the result, right? So in this way method overloading हो गया.
कंपाइलर को कोई प्रॉब्लम भी नहीं आया, सेम नेम था फंक्शन का, कंपाइलर को कंफ्यूजन भी नहीं हुआ, राइट? सो कंपाइलर हैज इन्वोक्ड बोथ द एडिशन फंक्शंस वेरी स्मूथली विदाउट एनी प्रॉब्लम. When the compiler has to invoke the overloaded method, compiler looks inside the bracket. How many number of parameters are there and data type क्या है, दोनों चीजें कंपाइलर देखता है. And compiler tries to find out 100% matching function. 100% matching function मिल गया तो वहीं पे वो कॉल कर लेगा, बाकी देखेगा भी नहीं. Okay, so is this clear? समझ में आ रहा है how the call gets resolved at runtime? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Now let us see another method. So second method is by changing data type of the arguments. Okay, so again we will write down our class adder. We have the add function. वहाँ पे दो पैरामीटर है, दोनों भी integer है. Okay, and it returns the addition. Return type is integer. Again we have the add method. Again we have same number of parameters, दो ही parameters है, but दोनों के दोनों now double है. तो ये डबल को ऐड करेगा एंड उसका रिजल्ट डबल में देगा. ओके, सो वी हैव दिस टू वर्जन्स ऑफ अ ऐड मेथड. नाउ लेट अस कम टू द मेन फंक्शन. मेन में वी हैव क्रिएटेड द ऑब्जेक्ट एडर ओबी इज इक्वल टू न्यू एडर. न्यू वाला यहाँ पे मिसिंग गया, बट एडर ओबी इज इक्वल टू न्यू एडर. सो आई विल क्रिएट द ऑब्जेक्ट एंड आई विल कॉल द मेथड ob1.add 11,11. सो कंपाइलर फिर से जाएगा, किसके पास जाएगा? एडर के पास जाएगा. तेरे पास ऐड फंक्शन है क्या? तो एडर बोलेगा हाँ दो ऐड फंक्शन है, तुझे कौन सा चाहिए? तो कंपाइलर क्या बोलेगा? मुझे ऐसा ऐड फंक्शन है क्या जिसमें दो पैरामीटर है. तो एडर बोलता है कि अरे दोनों फंक्शन में दो पैरामीटर है, कौन सा दूं? तो कंपाइलर बोलता है कि मुझे ऐसा एडर फंक्शन दे जिसमें दो पैरामीटर है, दोनों के दोनों इंटीजर है. तो एडर बोलता है कि हाँ आई हैव दैट फंक्शन, ऐड फंक्शन विथ टू पैरामीटर्स एंड बोथ आर इंटीजर. तो दिस इज 100% मैच. कंपाइलर विल कॉल द ऐड फंक्शन हैविंग टू इंटीजर्स एंड will print the result. Now second time compiler looks at the add function. तो दो पैरामीटर वाला ऐड फंक्शन है क्या? तो एडर बोलता है दोनों है. तो कंपाइलर बोलता है नाउ आई वांट द ऐड फंक्शन विथ डबल टाइप्स ऑफ पैरामीटर, है ना? तो एडर बोलता है कि हाँ मेरे पास वो भी है, दोनों डबल पैरामीटर वाला भी है. तो नाउ दिस इज अगेन 100% मैच. कंपाइलर विल कॉल द सेकंड वर्जन ऑफ ऐड फंक्शन विथ डबल पैरामीटर्स एंड इट विल प्रिंट द रिजल्ट विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी हेजिटेशन. Right, so see what has happened in this case when there are same number of parameters. दो parameters थे पहले वर्जन में भी और दो parameters पे दूसरे वर्जन में भी. So when there are same number of parameters, compiler will check the data type. Okay, compiler has to check data type. अगर यहाँ पे दोनों में इंटीजर होता, इसमें भी इंटीजर, इसमें भी इंटीजर, तो क्या होता था? कंपाइलर को कंफ्यूजन हो जाता था कि किसको कॉल करूं, है ना? तो इन दैट केस वो एरर देता था. तो अभी इफ द नंबर ऑफ पैरामीटर्स आर सेम देन डेटा टाइप शुड बी डिफरेंट, देन ओनली फंक्शन ओवरलोडिंग गेट्स सक्सेसफुली कैरिड आउट. ओके, इफ नंबर ऑफ पैरामीटर्स आर सेम देयर डेटा टाइप शुड बी डिफरेंट. एक का भी डिफरेंट होना चाहिए एटलीस्ट, सो दैट यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन दोज फंक्शंस. सो आई होप इट इज क्लियर टू यू. मेथड ओवरलोडिंग बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट. एक तो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट ही चेंज करो, तो डेटा टाइप कुछ भी हो, सेम भी हो तो भी चलता है. 2 है, 3 है, 4 है, पैरामीटर्स नंबर ऑफ पैरामीटर्स अगर डिफरेंट है तो डेटा टाइप तो कुछ भी होगा चलेगा. बट इफ योर नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आर सेम, डेटा टाइप डिफरेंट होने ही चाहिए, देन ओनली कंपाइलर कैन डिफरेंशिएट. Okay, so these are the two ways by which we can overload the method. First, you can change the number of arguments. Second, you can change the data type of the arguments. Right? Now let us see why method overloading is not possible by changing the return type. So we have discussed on this slide, na green mein method overloading is not possible by changing the return type. So क्यों नहीं possible? Now see the example. We have the again class adder, we have the add function with two parameters of integer, we have the add function with again two parameters of integer. तो add के बाद वाला कोड देखो, add के बाद वाला कोड integer a integer b return a plus b. यहाँ पे भी integer a integer b return a plus b, वो तो सेम है पूरा के पूरा. What change I have done? I have just changed the return type. पहले add में integer रिटर्न करता है और दूसरे add में डबल रिटर्न करता है, लेकिन बाकी का कोड तो अंदर वाला कोड तो सब सेम है. आई हैव हियर जस्ट चेंज द डेटा टाइप.
Now let us see what will happen. Okay, go to the main function, create the object, adder ob is equal to new adder, and then call the method ob.add. And I am passing two parameters. Okay, 11 comma 11. Now see what will happen when I pass two parameter. Compiler adder के पास जाएगा, add का function है क्या, तो adder बोलेगा हाँ I have दो add के function है, तो तुझे कौन सा दूं? तो compiler क्या बोलता है कि मुझे add का function चाहिए with two parameter. तो एडर बोलता है कि दोनों फंक्शन में दो पैरामीटर है, कौन सा दूं? तो फिर से कंपाइलर बोलता है आई वांट द एडर विथ टू इंटीजर पैरामीटर. तो एडर बोलता है कि अरे दोनों में दोनों पैरामीटर इंटीजर है, तो क्या दूं? तो अभी तो कंपाइलर के पास कुछ रहा ही नहीं ना, चेकलिस्ट ही नहीं रहा. तो कंपाइलर बोलता है कि मुझे एडर फंक्शन चाहिए विथ टू इंटीजर पैरामीटर, एंड फॉर दिस देयर आर टू वर्जन्स. पहले वाले ऐड में भी दो इंटीजर है, दूसरे वाले ऐड में भी दो इंटीजर है. तो कंपाइलर का चेकलिस्ट खत्म हो गया. अभी कंपाइलर कंफ्यूजन में है. तो कंपाइलर बोलता है पहले वाले को कॉल करूंगा तो दूसरा वाले को हर्ट हो जाएगा, दूसरे को कॉल करूं तो पहला हर्ट हो जाएगा. आई कैन कॉल एनी, दोनों मैच है ना, बट आई कांट डू दिस लाइक दिस, मैं किसी को हर्ट नहीं कर सकता. तो कंपाइलर इज नॉट गोइंग टू कॉल एनी, है ना. तो कंपाइलर क्या बोलता है कि मुझे एम्बिग्यूटी आ रहा है, मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, आई डू नॉट वांट टू हर्ट पहला वाला ऐड दूसरा वाला ऐड, तो मैं किसी को भी कॉल नहीं करूंगा. तो कंपाइलर आपको एरर ही दे देगा. कंपाइलर बोलेगा कि मुझे एक ही मैच चाहिए, दो मैच मत प्रोवाइड कर, है ना, मुझे कंफ्यूजन में मत डाल. ओके, तो फिर कंपाइलर आपको एरर दे देगा. अभी देखो आपने यहाँ पे रिटर्न टाइप तो चेंज किया था, बट कंपाइलर रिटर्न टाइप देखता ही नहीं ना. कंपाइलर जस्ट सी इनसाइड द ब्रैकेट्स, ब्रैकेट के अंदर कितने पैरामीटर है, वो पैरामीटर का डेटा टाइप क्या है, दैट्स व्हाट द कंपाइलर सी. कंपाइलर डोंट सी एट द रिटर्न टाइप, कंपाइलर देखता ही नहीं रिटर्न टाइप की तरफ, है ना. तो कंपाइलर ओनली चेक्स इनटू द ब्रैकेट हाउ मेनी नंबर ऑफ पैरामीटर्स यू हैव पास्ड एंड व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ दोज पैरामीटर्स, एंड डिसाइड उसी से करता है कंपाइलर कि किसको कॉल करो. अभी दोनों के दोनों कंपाइलर के लिए सेम है, रिटर्न टाइप चेंज करने से ओवरलोडिंग नहीं होता है. कंपाइलर बिकॉज देखता ही नहीं है रिटर्न टाइप की तरफ, है ना. सो इन दिस केस योर कंपाइलर विल थ्रो यू द एरर एंड आपका ये प्रोग्राम रन नहीं होगा. दिस ओवरलोडिंग इज नॉट सक्सेसफुल. ओके, हैव यू गॉट इट? समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. पक्का? Yes, ma'am. पक्का? Yes, सबको ma'am. समझ में आ रहा है? ओके ओके गुड. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन बी ओवरलोड जावा का मेन मेथड. मेन मेथड तो सबसे मेन है, मेन मेथड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ योर एग्जीक्यूशन. कैन वी ओवरलोड मेन मेथड? The answer is yes. Yes, we can definitely overload the main method. So we can write down a main method any number of times in a class. But JVM कौन सा वाला कॉल करेगा? JVM is smart enough. JVM हर टाइम वही मेन मेथड कॉल करेगा जिसके अंदर स्ट्रिंग का अरे एज एन आर्गुमेंट है, right? So see here the example. We have a class. Inside the class, I can have public static void main with our normal case string का array है. Okay, then I have public static void main, string argument है, एक argument है यहाँ पे, and I have a public static void main without the argument. Even I can write down only public void main, even I can write down only static void main. कुछ भी करूँ, रिटर्न टाइप में कुछ भी करूँ. ओके, अंदर वाला देखता है ना कंपाइलर, तो यहाँ पे रिटर्न टाइप आपका कुछ भी हो सकता है. अंदर वाले में JVM will check whether it has a string array, then only that main method will be invoked. बाकी के main method आप चाहो तो invoke करो, नहीं तो नहीं करो. Okay, so you can invoke the JVM will always invoke the main method which accepts the string array. Okay, otherwise there can be any number of main methods. Fine. Execute कौन सा होगा? सबसे पहले the main method having the integer string type का array. So you can overload the main method as well. Now method overloading and type promotion. Okay, so sometimes it happens that compiler do not found the 100% match, but उसको थोड़ा match मिल जाता है, 25% match, 50% match, 75% match. So what should be done in that case? Okay, so if the compiler do not found 100% match, then compiler tries to match 100% by type promotion. Okay, let us see how it is possible. So one type can be promoted to another type implicitly
if no matching data is found. Like your byte can be promoted to short, short can be promoted to integer, integer can be promoted to long. Means what? See, I want to store a byte. तो मेरे पास बाइट के लिए सपोज 2 बाइट का डेटा उसका स्टोरेज है, तो मेरे पास डिफरेंट कंटेनर्स है, जार्स है मेरे पास. ओके, बाइट का जो जार है ना वो छोटा सा है जिसमें स्टोरेज कैपेसिटी कितना है 2 बाइट का. ओके, उसका मेमोरी साइज का. देन शॉर्ट वाला आएगा, तो शॉर्ट का जार जो है वो बड़ा है, शॉर्ट का कंटेनर बड़ा है, 4 बाइट लगते हैं उसमें, 4 बाइट का डेटा यू कैन स्टोर. शॉर्ट से बड़ा होता है इंटीजर का बाइट, इंटीजर का जार, इंटीजर का कंटेनर, उसमें से 8 बाइट तक बैठता है डेटा. उससे बड़ा होता है लॉन्ग वाला, लॉन्ग में से 16 बाइट का डेटा बैठता है. तो कंसिडर दिस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंटेनर. बाइट का सबसे छोटा कंटेनर है, शॉर्ट का उससे बड़ा है, इंटीजर का उससे बड़ा है, लॉन्ग का उससे बड़ा है. राइट. सिमिलरली कैरेक्टर का कंटेनर छोटा है, 1 ही बाइट का डेटा उसमें बैठता है, इंटीजर का बड़ा है, ओके 8 बाइट का, फ्लोट का उससे बड़ा है से 10 बाइट का. ओके, राइट. लाइकवाइज डबल का सबसे बड़ा है से 16 बाइट का, एंड लाइकवाइज. So what happens, suppose you have declared a byte variable, okay, और आपने उसमें शॉर्ट डालना है, तो पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल. बाइट का वेरिएबल है आपका एंड यू आर ट्राइंग टू फिट यू नो शॉर्ट, मतलब बड़ा वाला, तो वो डेटा नहीं बैठेगा. Consider this like your say small, medium, L, XL, double XL, triple XL, likewise. तो मेरा साइज है मीडियम, तो मुझे स्मॉल तो बैठने वाला नहीं ना, बट मुझे लॉन्ग बैठेगा, एक्सेल बैठेगा, डबल एक्सेल भी बैठेगा, है ना. 100% मैच तो मेरा मीडियम है, बट मुझे एक्सेल डबल एक्सेल भी बैठता है, बट स्मॉल तो नहीं बैठता है, कितना भी ट्राई करूं, है ना. सिमिलरली मेरा अगर साइज एक्सेल है तो मुझे एल नहीं बैठेगा, मीडियम नहीं बैठेगा, बट हाँ मुझे उसके ऊपर वाले जो कपड़े वो बैठेंगे. लाइक आई कैन वेयर डबल एक्सेल, आई कैन वेयर ट्रिपल एक्सेल. अच्छे नहीं लगेंगे बट ठीक है, मैच तो हो जाएंगे, है ना. सो द थिंग इज दैट कंपाइलर भी वही ट्राई करता है. इफ यू हैव प्रोवाइडेड अ शॉर्ट डेटा टाइप एंड इफ यू ट्राई टू फिट इंटीजर, कंपाइलर नहीं बैठने देगा, नहीं बोलेगा, है ना. बट इफ यू हैव इंटीजर डेटा टाइप, आपके पास बड़ा वाला है, एंड इफ यू ट्राई टू पुट बाइट इनसाइड दैट, तो कंपाइलर बोलेगा चल मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तेरे पास बड़ा वाला स्टोरेज है ना, तो तू उसमें छोटा कंटेंट डाल या बड़ा कंटेंट डाल, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना. तो दैट इज द थिंग. सो टाइप प्रमोशन हो जाता है. In this case, if you have an integer and you want to store short, type promotion हो जाएगा, short will be promoted to integer. Suppose you have a integer, you have a long and आपने उसमें integer data डालना है, तो बैठ जाएगा. Long will always accommodate integer, short and byte because long सबसे बड़ा है ना. Similarly, integer can accommodate short, byte and likewise. This is called as a type promotion. Right, the short data type can be promoted to integer, long, float or double. कुछ भी शॉर्ट का इंटीजर हो सकता है, लॉन्ग हो सकता है, डबल हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. Similarly, character data type also can be promoted to integer, long, float, double and so on. Right, now let us see the example of this. So we have class overloading. Inside that I have 2 functions. First is void sum. It accepts 2 parameters. One is integer a and second is long b, and it adds those 2 parameters, okay, and displays the result. Then I have one more version of sum, say void sum. It accepts 3 parameters, integer a, integer b, integer c, okay, and it prints the addition of 3 integers. Right, now come to the main function. In the main function I have created the object overloading obj is equal to new overloading. I will say obj.sum 20, 20, and I will say obj.sum 20, 20, 20. There are 3 parameters. Now check it out. I am calling obj.sum. There are 2 parameters. So compiler बोलेगा, जाएगा overloading के पास, class के पास, do you have a sum method? So बोलेगा कि yes, I have a sum method. Compiler बोलेगा, do you have a sum method with 2 parameters? बोलेगा yes, I have a sum method with 2 parameters. तो कंपाइलर बोलेगा कि दोनों के दोनों इंटीजर है क्या, तो फिर क्लास क्या बोलेगा, अरे नहीं भाई मेरे पास 2 पैरामीटर वाला सम है ना, एक ही है, बट उसमें ना पहला पैरामीटर इंटीजर है और दूसरा पैरामीटर लॉन्ग है. तो फिर 100% मैच हुआ क्या? नहीं हुआ. कंपाइलर को क्या चाहिए था, दोनों के दोनों इंटीजर. कंपाइलर वांटेड अ सम मेथड विथ 2 पैरामीटर्स, बोथ आर इंटीजर.
But what compiler found? Compiler found a sum method with two parameters, but one parameter is integer and second parameter is long. तो 50% मैच है. पहला पैरामीटर इंटीजर चाहिए था, इंटीजर है, so there is a 50% मैच. 50% मैच नहीं हो रहा. दूसरा पैरामीटर इंटीजर चाहिए था बट मिला लॉन्ग. मतलब मुझे चाहिए था मीडियम, मुझे मिला एल. तो मीडियम तो एल में बैठ सकता है ना. आई कैन वेयर मीडियम तो आई कैन वेयर एल ऑल्सो. सो इंटीजर का जार छोटा है सी एंड लॉन्ग का जार बड़ा है. तो इंटीजर एलिमेंट्स कैन ऑलवेज फिट इनटू लॉन्ग. तो कंपाइलर देखता है, चल मुझे इंटीजर चाहिए तो मैं लॉन्ग में डाल सकता हूँ, स्टोर कर सकता हूँ. तो हियर टाइप कास्टिंग विल बी डन ऑटोमेटिकली. ओके, योर इंटीजर लिटरल this will be promoted automatically to the long one, and फिर कंपाइलर इस मेथड को कॉल करेगा सम को, एंड कंपाइलर will give you the result without any error. because आपका कंटेनर छोटा था, कंटेंट छोटे हैं, आपका कंटेनर बड़ा है, तो यू कैन ऑलवेज पुट स्मॉल कंटेंट इनटू बिग कंटेनर, बिग जार में यू कैन ऑलवेज पुट. तो कंपाइलर ने ये काम खुद ही कर दिया है ना. एंड व्हेन द सेकंड कॉल इज देयर obj.sum 20,20,20, तो कंपाइलर बोलता है कि तीन पैरामीटर वाला सम है क्या? तो है. तीनों के तीनों इंटीजर है क्या? तीनों के तीनों इंटीजर है. तो 100% मैच है, कुछ प्रमोशन करने की जरूरत नहीं है ना. देन कंपाइलर विल कॉल दिस मेथड डायरेक्टली. ओके, इज इट क्लियर? टाइप प्रमोशन वाला. Yes, ma'am. Yeah. Yes, ma'am. Now moving to the Yes, ma'am. another example. Example of a method overloading with type promotion if matching found. Now see, अभी वाला ये second case में क्या है? We have a class overloading. We have the sum method with two integer parameters, and again we have a sum method with two long parameters. Okay, दो sum है, दो ही parameter है, दोनों के दोनों integer है, दोनों के दोनों long है. अभी देखो क्या होगा. We will go to the main function, we will create an object, and we will call obj.sum 20,20. Okay, what is happened now? Compiler will check कि सम मेथड है क्या? है. दो पैरामीटर वाला है क्या? है. दोनों के दोनों इंटीजर है क्या? है. तो दोनों के दोनों इंटीजर वाला 100% मैच मिल गया. तो कंपाइलर यहाँ पे आएगा भी नहीं देखने के लिए कि बड़ा वाला कंटेनर है क्या, वो देखेगा भी नहीं. जब मुझे मेरा फेवरेट वाला मेरी साइज में मिल जाता है तो आई विल नॉट चेक फॉर द अदर्स ना. आई विल नॉट चेक फॉर एल, डबल एक्सएल, ट्रिपल एक्सएल, कुछ भी नहीं. मुझे मेरी साइज का मिल गया तो मैं वही लूंगी ना. सो द थिंग इज दैट कंपाइलर भी वैसे ही करता है. उसको उसकी साइज का मिल गया, उसको 2020 के लिए इंटीजर चाहिए था, इंटीजर मिल गया. तो कंपाइलर वो टाइप प्रमोशन की झंझट में पड़ेगा ही नहीं. जो 100% मैच वाला है वही वर्जन कंपाइलर उठाएगा एंड इट विल कॉल इट. although compiler can call this also, long का वर्जन भी कॉल कर सकता है by doing the typecasting. अगर यहाँ पे कुछ मिसमैच होता था तो वो लॉन्ग को टाइपकास्ट करता था, बट उसको 100% मैच मिला तो कंपाइलर विल नॉट गो टू द टाइपकास्टिंग, टाइप प्रमोशन. सपोज ओके, आई विल राइट डाउन इन द चैट बॉक्स. अगर मेरे पास ऐसा मेथड होता, पहला वाला जो सम है ना वो अगर नहीं होता और अगर ऐसे सम होता तो क्या होता? यू हैव टू गिव मी द आंसर. ओके, सपोज आई हैव मेथड लाइक दिस, इंटीजर a कॉमा लॉन्ग b. ओके, सपोज ये पहला वाला था ना, इंटीजर वाला वर्जन. सपोज ये नहीं होता था और अगर ये मेथड होता था void sum इंटीजर a कॉमा लॉन्ग b. अरे सिर्फ ललित को गया वो मैसेज बेटा. Set it over here. Yes. So if I have this version, तो क्या होता था? Please tell me. Which function compiler would have called? पहला वाला sum या दूसरा वाला दो long वाला sum? एक long वाला sum या दो long वाला sum? That you have to see. एक लॉन्ग वाला. मैम पहला वाला, एक लॉन्ग वाला. Okay, Shivam is saying 2. Okay, Lalit is also saying 2. Okay, I'll ask Shivam first. Shivam, why you are saying that दो long वाला call करेगा compiler? Can you tell? Because int can promote it to the long and one long is already there. So second a can be promoted to the long.
Okay, now again listen to me carefully. Yes, so we have this sum method where we have one integer and second long वाला parameter, and we have another sum method जिसमें दोनों के दोनों long है. अभी हमको ये कॉल करना है object dot sum 20, 20. तो कंपाइलर कैसे इंटरेक्ट करता है? कंपाइलर विल कम टू ओवरलोडिंग क्लास, उसको पूछेगा भाई तेरे पास सम मेथड है क्या? तो बोलेगा हाँ मेरे पास दो सम मेथड है. तो कंपाइलर बोलेगा मुझे 2 पैरामीटर वाला सम चाहिए, तो 2 पैरामीटर वाला है क्या? तो ओवरलोडिंग क्लास बोलता है दोनों में भी 2 पैरामीटर है. तो फिर से और एक क्वेश्चन पूछना पड़ेगा. तो कंपाइलर बोलता है कि 2 इंटीजर वाला है क्या? तो फिर ये बोलता है नहीं यार मेरे पास 2 इंटीजर वाला तो नहीं है, मेरे पास पहला मेथड है जिसमें एक इंटीजर है और दूसरा लॉन्ग है, और दूसरा मेथड है जिसमें दोनों के दोनों लॉन्ग है. तुझे कौन सा चलेगा? तो कंपाइलर बोलता है चलेगा तो दोनों भी चलेंगे. In both the cases I have to टाइप प्रमोट करना पड़ेगा. तो किसमें मेरा काम कम होगा? तो पहले इसमें पहला इंटीजर है तो ये एज इट इज मैं कर लूंगा, और दूसरा पैरामीटर लॉन्ग है तो मैं एक इंटीजर को लॉन्ग में प्रमोट करता हूँ. तो 50% मैच है, 50% आई हैव टू प्रमोट. और दूसरे केस में दोनों लॉन्ग है ना, तो दोनों को मुझे प्रमोट करना पड़ेगा, तो मुझे 100% काम करना पड़ेगा. तो फिर कंपाइलर क्या देखता है? पहले वाले में मुझे 50% मेरा काम बच रहा है क्योंकि एक पैरामीटर इंटीजर था. तो कंपाइलर देखता है कि मुझे कितना काम कम करना पड़ेगा. तो इन द फर्स्ट केस कंपाइलर हैज टू डू 50% टाइप प्रमोशन. इन द सेकंड केस कंपाइलर हैज टू डू 100% टाइप प्रमोशन. तो कंपाइलर तो ऑब्वियसली जितना काम कम होगा वो ही लेगा ना. तो इन द फर्स्ट मेथड कंपाइलर को 50% ही काम है, तो कंपाइलर विल कॉल फर्स्ट मेथड जहां पे 50% मैच था, 50% टाइप प्रमोशन था. आर यू गेटिंग दिस? शिवम, ललित, हैव यू Yes, गॉट इट? ma'am. पक्का समझ में आया Yes, अभी? यस मैम. ओके, वेरी गुड वेरी गुड. सो कंपाइलर क्या देखता है? पहले तो देखेगा 100% मैच के लिए, है ना. हम लोग जब मॉल में जाते हैं, शॉपिंग के लिए जाते हैं, कि हम लोग हमारी साइज का देखते हैं. अगर हमें एक पर्टिकुलर ड्रेस बहुत पसंद आया, बहुत ज्यादा पसंद आया, और फिर साइज नहीं मैच रहा, देन ओनली वी लुक कि चलो एम नहीं है ना तो मैं एल ले लेती हूँ, फिर उसको मैं बाद में अल्टर करूंगी, है ना, ऐसे. तो दैट इज द केस. और कंपाइलर फिर क्या देखता है कि 100% मैच वाला देखता है कि 100% मैच है क्या. अगर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वही कॉल करेगा. अगर 100% मैच नहीं है तो कंपाइलर देखेगा कि चलो 100% नहीं है तो 50%, तो मुझे मीडियम चाहिए तो मैं एल तक जाऊंगी. अगर मुझे बहुत ज्यादा पसंद है तो मैं एल लूंगी. एल और एक्सएल दोनों अवेलेबल है तो मैं एल ही लूंगी ना. तो एल को कम अल्टर करना पड़ेगा, एक्सएल को ज्यादा अल्टर करना पड़ेगा, है ना, दैट टाइप ऑफ थिंग. तो कंपाइलर पहले तो 100% देखेगा, 100% वाला मिल गया तो वेल एंड गुड. 100% नहीं मिला तो मिनिमम कितना हो सकता है उसका टाइप प्रमोशन वो देखेगा. तो हमारे इस केस में यहाँ पे 50% था, दूसरे में 100% था. 50% वाला कंपाइलर विल invoke. Okay, I hope it is clear, everyone. Now the next one. Next case is okay, ambiguity वाला अगर केस आता है तो अगेन वी हैव द ओवरलोडिंग का फंक्शन. वी हैव टू सम मेथड. पहले सम में दो पैरामीटर है, पहला पैरामीटर इंटीजर है, दूसरा पैरामीटर लॉन्ग है. अभी दूसरा सम आया जिसमें पहला पैरामीटर लॉन्ग है, दूसरा पैरामीटर इंटीजर है ना, इंटरचेंज हुआ है बस. ओके, एंड देन अगेन वी हैव द ऑब्जेक्ट एंड वी आर कॉलिंग obj.sum 20, 20. ओके, तो अभी देखो क्या हो रहा है कि सम मेथड आया, कॉल आया, कंपाइलर बोलेगा है क्या सम? तो हाँ मेरे पास दो सम है. 2 पैरामीटर वाला सम है क्या? हाँ 2 पैरामीटर वाले दो सम है. तुझे कौन सा चाहिए? कंपाइलर बोलता है कि मुझे 2 पैरामीटर वाला, दोनों इंटीजर वाला चाहिए. तो फिर अब भी प्रॉब्लम हो गया. तो क्लास क्या बोलता है? दोनों पैरामीटर में एक ही इंटीजर है. पहले इसमें पहला वाला पैरामीटर इंटीजर है, दूसरा लॉन्ग है, और दूसरे इसमें पहला लॉन्ग है, दूसरा इंटीजर है. तो कंपाइलर बोलता है कि ठीक है टाइप प्रमोशन देखते हैं. तो पहले इसमें कितना टाइप प्रमोशन करना पड़ेगा? कैन यू टेल मी? इन द फर्स्ट केस कितना % होगा टाइप प्रमोशन? Can you tell me this? Yes, हाँ 50% होगा ना. पहला पैरामीटर तो मैच होगा, दूसरे पैरामीटर के लिए प्रमोशन करना पड़ेगा, राइट. तो कंपाइलर बोलता है कि ठीक है दूसरे का भी चेक कर लेते हैं. तो दूसरे में कितना करना पड़ेगा? दूसरे वर्जन में 50.
यस 50%। हाँ पहला पहला तो करना पड़ेगा, पहला नहीं था मैच, दूसरा तो है। तो अभी बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया, दो मेथड है, दोनों के पास दो पैरामीटर है, दोनों को टाइप प्रमोट करके देखा, दोनों में 50-50% टाइप प्रमोशन है। तो कंपाइलर बोलता है कि अभी ये तो एम्बिग्युइटी यार, मैं पहले को नहीं कॉल कर सकता क्योंकि दूसरा नाराज हो जाएगा, दूसरे को नहीं कॉल कर सकता पहला नाराज हो जाएगा, तो किसको कॉल करूँ? मैं किसी को भी कॉल नहीं करूँगा, है ना। आपने अगर कंपाइलर को कंफ्यूजन में डाला तो कंपाइलर आपको एरर देने वाला है ना। तो कंपाइलर बोलता है कि आई कैन कॉल बोथ द मेथड्स, दोनों में सेम प्रमोशन करना पड़ेगा एक एक पैरामीटर को, तो मुझे कंफ्यूजन है कि किसको कॉल करो। तो कंपाइलर कंफ्यूज हो गया तो बोलो अपने को एरर आ गया, है ना। तो कंपाइलर विल नॉट कॉल एनी मेथड बिकॉज उसको सेम सेम काम करना पड़ रहा है, एंड इन दैट केस द error will be there. Okay, because of ambiguity, compiler is not able to call any method and compiler will throw you the error, right? Are you getting this? So compiler check करेगा, same work करना पड़ रहा है, I will not call anybody. Okay, so this was regarding your method overloading with type promotion in case of a ambiguity. So that was the variations what we have discussed regarding the method overloading. I hope it is clear to all of you. Is the concept of method overloading clear? Everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सबका सबको समझ में आया? हाँ, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Okay. Let me stop the recording.